Heart to Heart with Simran and Ramita. नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन नागपाल दिल्ली ग्लैमर के इस ग्लैमरस प्लेटफॉर्म से आज फिर आपसे मिलने आई हूँ और आज मेरे साथ है रोमिता खुराना साहनी. शी इज़ अ ग्लैमरस वुमन. नो, नॉट only this, she is a beautiful woman and a beautiful soul as well. रोमिता जी जो कि शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट और क्या आप जानते हैं कि शी इज़ अ ऑथर ऑल्सो. अब मैं बहुत नहीं कहूँगी क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू हियर इट आउट फ्रॉम हर itself. So here we go. Hi ma'am, welcome to our show. Thank you, Simran, for having me on this platform. I'm really grateful to you. Ma'am, I know you as a person. You are an amazing person that I know. But I really want my audience to know because you have your beautiful journey. So please tell us that. Sure, Simran. I am an author. I'm the founder member of Avid Readers Club. And I'm also an educationist. I take classes with children and I help them to read. I help them to become the leader of tomorrow. You know, it's not easy for children to read novels. Nowadays, when gadgets and, you know, in this lockdown, it was so difficult for mothers to cope up with them. So they enrolled themselves with Avid Readers Club and I help them to read novels. I help them to, you know, inculcate good habits of reading. Oh, that's wonderful because, ma'am, when I see to make children sit and read, it's one of a big thing on this earth. Because reading is one thing that kids very rarely they like. Yeah. And how do you manage with the kids? It comes naturally to me, Simran. It's my forte. And I'm much more comfortable with the children rather than I'm easy with the adults also. But you know, if I give them a paragraph to read, इतने व्यू पॉइंट्स होते हैं, उनकी परसेप्शंस इतनी हमसे अलग होती हैं. They are so natural, they are so pure. I love to listen to their perspective. I love to, you know, there is this group discussion. Now I have started giving them tips on how to recognize literary devices. But first of all, that comes out is that my relationship with them when we are reading. And I have always read with them something that is going to connect with them morally. It's going to be morally very important for them in their life and it's going to benefit them in their future. Like, for example, I want to say right now we are doing a book called The Hate You Gave. Okay. So it's all about racism. It's all about how this girl, you know, she sees the murder of her friends and, you know, how she copes up with it. It's such an emotional story. They get involved in it completely. They are absorbed in the book unless and until we don't finish it. I will not say we finish it, we complete it. So dear audience, जैसे आपने देखा that how beautifully she has put कि बच्चों में first of all that the moral ethics that we need to put and novels, you know, reading novels or probably some good books is the best way to do that. So from Romita ma'am, we are going to learn that because अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके बच्चे उनसे सीखें, so definitely we have her number and you may connect with her. Moving further, do you know that she is an author also? Come on, let's have that also from her. So, ma'am, we know that you've just recently wrote a beautiful book. And you know what? That I have read it as well. But my audience would like to know. And before that, I would like to show it to my audience also. The wonderful book that we have is Solicitous Soul. It's a book full of soulful stories. So, let's hear it out from her. Simran, I wrote this book around 2.5 years back. I could see a lot of social stigmas in the society. I could see a lot of wrongdoings, my own observations, my own experiences about maybe a girl who is getting teased in a bus, in a metro, about a woman who is unable to conceive for 5 to 6 years, about a man who is not able to find the right partner. Why does it become a national concern? So through my stories, I wanted to, you know, send out a message. And nowadays, you know, India is such a secular country. Somebody is a Muslim, Christians, Hindu, we have it all here. But has anybody spoken about spirituality? Does anybody knows the difference between religion and spirituality? So, you know, for me, it was religion was following a messenger
and spirituality is following the message. So with these little quotes and short soulful stories, I have come up with this book. How wonderfully said, that spirituality, that's the core and that's the need of the hour. I must say, all of you, you have to read this book because it says a lot of things, and every story has a moral to it. And I really recommend, so go and buy it. It's available on Amazon itself. Am I correct, ma'am? Yes, Simran, you are. Okay, so moving further, now that I have so much to ask you, I'm just wondering what all to do in just 15 minutes. So with that, I also know that you are a wonderful anchor. Probably I am here and I really feel, oh my God, मैं क्या justice कर रही हूँ आपको interview करते हुए, because I've seen you doing a wonderful show, and that too was with little ones, you know, kids के साथ show करना is a big deal. Audience, I'm sure you would agree to it. Let's hear it out about this also. सिमरन, पहले तो आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है. Your expressions, the way you speak, and your aura is so beautiful. I get to learn so much from you today itself. But as I have said, that I am most comfortable with children from the age of, like, I always tell parents, give me your, you can send your children from 8 year onwards. Until 16-year-olds, I talk to them, I learn from them, they learn from me. So this, I wanted to talk about the history of Delhi. I wanted them to know about the temples of Delhi. And सिमरन, ये जो पैंडेमिक का ये टाइम है, ये जो लॉकडाउन का टाइम है, ये बहुत डिफ़िकल्ट रहा है हम लोगों के लिए और हमारे बच्चों के लिए भी. क्योंकि ये जो पीढ़ी है हमारी, तो ये एक कमरे में हम इनको बंद नहीं रख सकते. They have a mind to explore. They are very intelligent. तो मैं ये चाहती थी कि मैं उनको कैसे इन्वॉल्व रखूं, कैसे वो नॉलेज इम्बाइब कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जिसमें दे आर वेरी अजाइल, दे हैव एन एजिलिटी, दे आर सो एक्टिव, दे वांट टू गो आउट. पर वो एक कमरे में जो बंद थे, तो मुझे लगा कि मैं ऐसा एक शो बनाती हूँ जिसमें मैं बच्चों को एक तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में भी बता सकूँ और उनको मोबाइल और लैपटॉप से दूर भी रख सकूँ. बहुत बहुत बढ़िया, बिकॉज मैम आई हैव विटनेस दैट शो और आपने इतनी ब्यूटीफुली मैनेज किया. एंड ऑडियंस, डू यू इमेजिन कि वो हमने जूम पे शूट किया एंड इट केम आउट सो वेल. इट केम आउट एंड द चिल्ड्रन वर स्पेक्टेक्युलर. उन्होंने इतना अमेजिंग काम किया है और हर बच्चा अपनी लाइंस इतने 2-3 दिन पहले से ही प्रैक्टिस करते थे मेरे साथ और ऑन टाइम मेरे साथ सेशन में प्रेजेंट रहते थे. और वो हमेशा एक सीखने की जो इच्छा होती है ना बच्चों में, हमसे कई ज़्यादा होती है सीखने की इच्छा और ग्रास्पिंग की. वो ये एज जो है ये बड़ी ही सेंसिटिव है और इसको हमें बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को बता रहे हैं वो कितनी करेक्ट है, उनको कैसे लाभदायक साबित हो सकती है. सो ऑडियंस, आपने ये देखा दैट एवरी आस्पेक्ट, जिस भी आस्पेक्ट में हमने रोमिता मैम को देखा, शी इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन. मैं उनको बहुत करीब से जानती हूँ क्योंकि वो एक दोस्त भी हैं. बिसाइड्स दैट, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हमने जान लिया, बट हर किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं जो मैं ये सोचती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे, ऑल्दो ये ग्लैमर प्लेटफॉर्म है, ऑल्दो हम ग्लैमरस न्यूज़ को ही सोचते हैं कि आएगी, लेकिन अब हमारा जो आइडिया है, जो हमारा सोच है कि हमारी जो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े वो आप सबके लिए एक मॉरल ज़रूर देके जाएं, कोई एक ऐसा मैसेज जो आपकी लाइफ को छुए और हाँ, आपको किसी भी तरह से चेंज होने में मजबूर कर दे. तो लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम रोमिता मैम कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या रहा जिससे उन्होंने ये सब करने की सोची. सिमरन, मेरे हिसाब से मेरे अभी बच्चे 12 और 13 साल के हैं, बड़े हो गए हैं दोनों मेरे बेटे. और जैसे आई थिंक हाउसवाइफ्स बहुत अकम्पलिश्ड हैं अपने में ही. मैं एक हाउसवाइफ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता था. आई हैव सीन माई चिल्ड्रंस चाइल्डहुड, आई हैव स्पेंट अमेजिंग टाइम विद द फैमिली. बट द फैमिली इटसेल्फ बड़ी सपोर्टिव है मेरी, कि अगर मैं कुछ करना चाहती थी, अगर मैं लिखना चाहती थी, तो दे यूज्ड टू गिव मी माई स्पेस. तो वो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट करी है और वो चाहते थे अगर मम्मा वांट्स टू डू समथिंग, सो वी शुड गिव हर दैट स्पेस, वी शुड गिव हर उनको अपना एक टाइम चाहिए. वो उन्होंने हमेशा मुझे दिया है. इवन माय हस्बैंड चेतन साहनी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है खुद में, पर उन्होंने एक फैमिली ने बहुत हेल्प करी है मुझे एज एन इंडिविजुअल आगे बढ़ने में. मेरे इन लॉज ने भी
मैं कहती हूँ मेरा हाथ पकड़ के मुझे हर कदम में मेरा साथ दिया है। और मुझे ये कहने में बहुत प्राउड फील होता है कि हर स्टोरी में जब भी मैं लिखती थी तो वो हर बारी कहते थे अच्छा आज क्या लिखा है आपने, आज आप कौन सा टॉपिक कर लिखने वाली हो। तो हम एंड दे यूज्ड टू शेयर देयर आइडियाज़ विद मी, दैट वाज इवन मोर इनकरेजिंग। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि अगर किसी भी इंसान की लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, हम सबके लाइफ में डिफ़िकल्टीज होती है, हाउ डू वी आउटकम, हम कैसे एक हाउ डू वी कम आउट ऑफ इट, उसके पीछे मेरे हिसाब से सिमरन आपकी भी एक स्टोरी रही होगी। एंड देयर वर सो मेनी फ्रेंड्स व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, सो मेनी फ्रेंड्स यूज्ड टू शेयर देयर स्टोरीज विद मी कि आप मेरे बारे में लिखो। क्यों एक इंसान उससे शादी नहीं कर सकता जिसकी पहले से शादी टूटी हो, उसको क्यों नहीं मौका मिल सकता फिर से जीने का, या उसको क्यों नहीं मौका मिल सकता जो कि आप स्किन टोन्स पे भी आप कमेंट करते हो एक दूसरे के कि कोई फेयर है या कोई डार्क है, आप एक इनसिक्योरिटी क्यों एक दूसरे को देते हो, आप एक दूसरे के लिए सिक्योर स्पेस क्यों नहीं क्रिएट करते। तो ये बुक इन सब के बारे में है कि गिव योर सेल्फ एंड सिक्योर स्पेस एंड गिव अदर्स प्लेस टू फ्लरिश ऑल्सो। Okay, thank you so much. So viewers, आपने ये जाना that how ma'am has been through in her life, like she was like she says कि मैं एक हाउस मेकर रही थी लेकिन उनको किसी चीज़ ने इंस्पायर किया। और आप इस इंटरव्यू से ये मोरल ले रहे हैं कि इंस्पिरेशन आई उनकी अपनी फैमिली से। सो ऑल ऑफ यू मस्ट टेक इट एज अ टेक अवे फॉर टुडे कि हमारी फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि फॉर एवरी मैंस, एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैम आपकी सक्सेस के पीछे डेफिनेटली आपके हस्बैंड का हाथ है, एंड फॉर श्योर योर फैमिली एज वेल। सो माय डियर व्यूअर्स, आई एम रियली हैप्पी टू हैव हर ऑन बोर्ड विद अस, एंड आई एम श्योर दैट आपको भी ये इंटरव्यू देख के बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो हमारे दिए गए नंबरों पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, रोमिता मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो बाय हर बुक, गेट योर चिल्ड्रंस इन्वॉल्व। एंड बिफोर आई गो, आई वांट टू ऑल्सो नो कि मैम के साथ हम किस तरह से अपने बच्चों को जोड़ के और ये बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो लेट्स लास्टली हियर आउट फ्रॉम हर। सिमरन ऑफिशियल पेज है एविड रीडर्स क्लब का, और मैं रेगुलर अपडेट्स डालती रहती हूँ कि मैं कौन सी बुक कर रही हूँ, कौन से एज ग्रुप के साथ कर रही हूँ, कौन सा जॉनर कर रही हूँ, एवरी डिटेल, हाउ मेनी पेजेस इट इज़, हाउ मेनी मंथ्स विल इट टेक, we sometimes just finish it in 15 days only. Accordingly, I have been updating about the books. Plus मेरा एक पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है Solicitous Soul, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं। Thank you so very much, ma'am, and I'm sure all of you must be very much glued to the page. Do like her page, do connect with her, and get yourself in tune with what's happening in the industry of books and literature. Till then, मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगी एक बहुत ही और प्यारी हस्ती के साथ। तब तक के लिए ग्लैमर के साथ जुड़े रहें, डेली ग्लैमर के साथ जुड़े रहें, और भूलेगा नहीं मेरे पेज को भी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जुड़िए रहिए और भी बहुत सारी सनसनीखेज खबरों के साथ। गुड बाय।